Hello everyone, welcome back to the channel. I have brought you another video in our physics class 12th tutorial series in which we will learn what is an electric dipole, electric field due to an electric dipole for points on the axis and for points on the equatorial plane. And lastly, we will learn physical significance of an electric dipole. Alright. Before going ahead, I want to make a quick announcement that I have created a separate channel which is named Excelsior JEE-PM. Okay, it is based on solving previous year questions of JEE Main and JEE Advanced from physics and math subjects. I will be picking trickiest questions from both these exams and I will be providing solutions on this channel. Okay, so if you are preparing for these exams, you can follow this channel. I will put link for this channel in the video description. Alright, so without any further delay, let's get to the topic. Electric dipole. First, what is the definition? An electric dipole is a pair of equal and opposite point charges Q and minus Q separated by a distance 2a. The line connecting the two charges defines a direction in space. Okay. First of all, why they are separated by a distance 2a? Why are we taking the distance as 2a? See, 2a has been picked only for simple reason that it helps in easier calculations. All right. So there are 2 point charges, positive charge and negative charge, and they are separated by a small distance 2a. This charge configuration is called as electric dipole, and the direction of this dipole is from minus q to positive q. And why is it so? See, it's a purely just a convention. All right. The choice of direction is a convention, but is chosen for consistency across physics. See, on the basis of this convention, we will derive physical quantities based on this, such as electric field or potential charge. Then it helps us in consistency. All right. If you take the direction from positive to negative, what will happen that in physical derived quantities, you will be having minus sign again and again. So it will not help us in easier calculations. All right. So this convention that the dipole is having direction from negative to positive is helping us in consistency across the derived quantities. All right. Also, when we will be learning about torque developed by a dipole in a uniform external electric field, this validation will be observed by you. Okay. So this is about the definition, and I have already told you by the convention the direction from minus q2 is said to be the direction of the dipole, and the midpoint of locations of minus q and q is called the center of the dipole. Okay, so this is the center of the dipole. All right. Now, since the charge and q and minus q are separated by some distance, the electric fields due to them when added do not exactly cancel out. Obvious है, alright, कि electric field totally तो cancel out नहीं होगा. Okay. However, at distances much larger than the separation of the two charges forming a dipole, the fields due to q and minus q nearly cancel out. So basically क्या कह रहा है कि अगर आप जैसे इनके एक्सिस पे या फिर इक्वेटोरियल प्लेन पे अगर जो आप डिस्टेंस ले रहे हो, जिस डिस्टेंस पे जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हो, अगर वो जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से, वो डिस्टेंस अगर बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू ए, ओके, कंपेयर टू 2a, कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, अगर ये बहुत बहुत बड़ा है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लार्जली क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है. ऑलराइट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल देयरफॉर फॉल्स ऑफ एट लार्ज डिस्टेंस. ऑलराइट, सो ये सिंपल सा मीनिंग है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. अभी हम यहाँ पे इसमें दो केस हमें फॉलो करना है. एक है 4 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस. हमें क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो डाइपोल की जो एक्सिस है उस एक्सिस पे अगर हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे. ऑलराइट, सो एक ये सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है. जस्ट लुक एट इट. दिस इज योर नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a. और एक पॉइंट है P, जो r डिस्टेंस है फ्रॉम मिड पॉइंट, जो r डिस्टेंस पे है फ्रॉम मिड पॉइंट. ऑलराइट, फ्रॉम मिड पॉइंट. तो हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट कैलकुलेट electric field separately because of these charges, and then by the superposition principle we will just add them up. All right, so vector E total equals vector E due to positive charge, vector E due to negative charge. So vector E due to negative charge क्या है, q upon 4 pi epsilon naught into 1 upon r square, r plus a whole square into r plus a whole square negative p cap.
ओके। यहाँ पे P यूनिट कैप वेक्टर क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका जो हमने बाय कन्वेंशन हमने डायरेक्शन लिया है उस डायरेक्शन को शो कर रहा है। ओके, हमने इस डायरेक्शन को P कैप मान लिया है। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी रेडियली आउटवर्ड, राइट। तो इस डायरेक्शन में है क्योंकि पॉजिटिव की वजह से रेडियली आउटवर्ड होता है, और नेगेटिव क्यू की वजह से जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी वो इस तरफ आउटवर्ड होगी, राइट, इस तरफ डायरेक्ट कर रही होगी नेगेटिव क्यू की तरफ। ऑलराइट, सो हमने ऑलरेडी इस वाले डायरेक्शन को पी कैप बोला है, इस वाले डायरेक्शन को पी कैप बोल रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से पी कैप डायरेक्शन में है और नेगेटिव वजह से क्या हो जाएगा, माइनस पी कैप हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, सो पॉजिटिव ई क्यू की वजह से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर पी कैप। अब यहाँ पे ये जो दोनों डिस्टेंसेस हैं, जो ये डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है आर का वो आर माइनस ए है, और जो नेगेटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है पॉइंट पी से वो है आर प्लस ए। ओके, सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल कॉन्फिगरेशन, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। ऑलराइट, इतना डिस्टेंस आपका ए हो गया। तो पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव की वजह से जो हमारा डिस्टेंस है वो नेट डिस्टेंस कितना होगा पॉजिटिव की वजह से, यहाँ से ये वाला होगा आर माइनस ए। ऑलराइट, और नेगेटिव के लिए आर प्लस ए हो जाएगा, नेगेटिव के लिए आर प्लस ए हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करके दोनों को ऐड कर देंगे। सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर पी कैप। यहाँ पे जहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज की वजह से जो माइनस पी कैप था उसको मैंने पी कैप लिख के यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे ले लिया। ऑलराइट, सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, सो जस्ट सिंप्लीफाई दिस, इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स। इफ यू जस्ट एक्सपैंड दीज टर्म्स in the numerator and in denominator you will get the LCM, and if you look at this, this is a minus b into a plus b, so a minus b into a plus b, a square minus b square का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या बचेगा 4ar into p कैप। सो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सी, इफ r इज वेरी ग्रेटर देन a, ओके, r इज मच लार्जर देन a, सो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेटली r स्क्वायर। ऑलराइट, विल बी अप्रोक्सीमेटली r स्क्वायर, क्योंकि जो आपका r होता है वो बेसिकली आप जब कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली आप 10 मीटर्स 20 मीटर्स ऐसे रहता है, और जो आपका a होता है, जो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस होता है वो जनरली इस ऑर्डर का होता है, 20 सेंटीमीटर हो गया, 50 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, राइट, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो सेंटीमीटर के कंपेरिजन में यहाँ पे जो r है वो हम मीटर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो आपका ई टोटल आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar डिवाइड बाई r पावर 4, सो आपके पास ये फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे आपका आ गया है। ऑलराइट, electric field due to electric dipole on its axis. All right, now for points on the equatorial plane, पहले तो equatorial plane को हमें समझना है। ये 2D में ये मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया इस कॉन्फ़िगरेशन को, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है, इस मिड पॉइंट पे एक हमने क्या है लाइन ड्रॉ किया है, ये 2D में है। अब आप 3D में जब इसको देखोगे बेसिकली ये प्लेन शो कर रहा है, 2D में तो आपको ये लाइन ही दिखेगी। सो मिड पॉइंट से जो भी प्लेन इस एक्सिस के नॉर्मल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल वर्ड से ही समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट पी लो, अभी भी ये पॉइंट यहाँ पे शो किया हुआ है, यहाँ पे अगर ये पॉइंट होता या फिर यहाँ पे होता तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज से इस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला, ये जो डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा दोनों के लिए, तो इक्वेटोरियल प्लेन। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट P से हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है इस डायपोल के एक्सिस पे। ऑलराइट, और ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा, यहाँ पे ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला जो आपका हाइपोटेन्यूस है ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ वी विल कैलकुलेट सेपरेटली फॉर बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज। पहले कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके बाद जो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करके ऐड कर देंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड शो किया हुआ है मैंने, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये डिस्टेंस है पॉइंट P का फ्रॉम ईच ऑफ द पॉइंट चार्जेस। सो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है, और ई माइनस क्यू की वजह से क्यू अपॉन 4 सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम है। ऑलराइट, नाउ वेक्टर टर्म्स में हमें पहले देखना है, अभी पहले हमें एक चीज़ और समझ लेनी है कि वेक्टर टर्म्स में हमें पहले डिफाइन करने पर हमें देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वो किस तरीके से यहाँ पे फॉलो हो रही है। देखो, पॉजिटिव की वजह से तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से गया, ये रेडियली आउटवर्ड हो रहा है इस डायरेक्शन में, राइट, यहाँ इस डायरेक्शन में गया। ओके, और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। ऑलराइट,
अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बनी है, ये जो आपका ये वेक्टर दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों में, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे बेसिकली एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ऑलराइट, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, राइट, दोनों की ही वजह से। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे एक नेट हॉरिजॉन्टल आपको कंपोनेंट मिलेगा दोनों की वजह से, ऑलराइट। सो अगर ये मैग्नीट्यूड ई है, ओके, तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा, राइट, और सिमिलरली इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। तो अभी यहाँ पे ध्यान देखो कि जो भी डायरेक्शन आएगा वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन क्या होगा, माइनस पी कैप, माइनस पी कैप, क्योंकि हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है कि ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है जो माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू की जा रही है, इसके लिए हमने क्या बोल रखा है कि ये पी यूनिट वेक्टर है, ओके, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ऑलराइट। तो ये हमने इस्टेब्लिश कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे फॉलो करते हैं कैलकुलेशन। तो ई प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे आपका ये जनरेट होगा, यहाँ पे माइनस पी कैप लगा रखा, आप देख लो, और ये कॉस थीटा, ये वाली जो क्वांटिटी है ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का। सिमिलरली ई माइनस क्यू की वजह से ये मैग्नीट्यूड है और ये इसका यूनिट वेक्टर है, ऑलराइट। नाउ इसको अगर आप सम करोगे तो सब कुछ कॉमन लेके आप क्या करोगे, 2q/4πε0 माइनस यहाँ पहले लगा रखा है 1/r² + a² इंटू यहाँ पे cos थीटा की जगह पे क्या लिख रहे हैं, a/√r² + a², ओके। सिंपल है, इस वाले ट्रायंगल में आप जब फॉलो करोगे तो यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में आप जो देखोगे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आप जो cos थीटा निकालोगे तो आपको a/√r² + a² मिलेगा, ओके। अगेन सिंपल मैथमेटिक्स। सो वी हैव अराइव्ड ऑन दिस expression -2qa divided by 4πε0 r² + a² power 3/2 unit vector p cap, all right. Now again, if r is very much bigger than a, so we can write r² + a² power 3/2 approximately equal to r cube, okay. Again I have done this. Now आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, सर आप रैंडमली ऐसे बोल दे रहे हो, आपके पास प्रूफ है इस चीज का, we can prove this, okay. Now you must have read about binomial theorem इन 11th क्लास, राइट। थोड़ा सा बेसिक्स आपको पता होगा, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट कंसिडर दिस, ओके। आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई है। यहाँ पे इसके दो टाइप्स हैं, व्हेन पावर्स आर नेचुरल नंबर्स एंड व्हेन पावर्स आर रेशनल नंबर्स। अगर ये कुछ एक्स और वाई नंबर हैं, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और पावर में n है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, nc0 x पावर n y पावर 0 प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 y पावर 1 प्लस अप टू n नंबर्स। एंड इसको अगर आप NC0 को लिखोगे तो NC0 क्या होता है, 1 होता है, NC1 क्या होता है, n होता है, NC2 क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल होता है, राइट। एंड व्हेन पावर्स आर रैशनल नंबर्स, तो 1 + x पावर n इक्वल्स 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x² प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ऐसे एक्सप्रेशन में जो हमारा जो x है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से कम होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 से कम होता है, ऑलराइट। बेसिकली 0 से x लेस देन 1 इसके बीच में इसका मैग्नीट्यूड इतना आएगा, ऑलराइट। नाउ ये x जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बस उसका मैग्नीट्यूड है वो 0 से 1 में है। तो a मतलब बेसिकली एक रैशनल नंबर हो जाएगा आपका, a इज़ वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। तो अभी इसके बेसिस पे हम यहाँ पे इस चीज़ को हम थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। r² + a² पावर 3/2 इक्वल्स, अब you take r² कॉमन in this expression, so you will write it like this, r² into 1 + a² divided by r² whole power 3/2, whole power 3/2. Now this power goes to r², so आप इसको बाहर लिख सकते हो, r³ into 1 + a² divided by r² power 3/2, all right। अब मैं बायनॉमियल थ्योरम यूज करके इसको मॉडिफाई करूंगा। सो 1 + a² divided by r² power 3/2 इक्वल्स 1 प्लस क्या है, 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x² प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे n की जगह क्या है, 3/2 है, और x की जगह क्या है, x क्या है यहाँ पे, a² डिवाइडेड बाई r²। अब यहाँ पे a² डिवाइड बाई r² का जो फ्रैक्शन है ये 1 से कम ही होगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n क्या है 3/2, सो 1 + 3/2 इंटू a² डिवाइड बाई r² प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 होल इंटू a² डिवाइड बाई r² होल स्क्वायर, ऑलराइट।
अब यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स पे देखो, आप पहले फर्स्ट टू टर्म्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म ये तो 1 है, तो ये 3/2 इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो आपका जो आर है वो ए से बहुत बड़ा है, ओके। तो आर स्क्वायर भी ए से बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर आप ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू बहुत ही छोटी आएगी, ये वैल्यू बहुत ही छोटी आ जाएगी, और ये अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 0 मान लो। कैसे, आप एग्जांपल ले लो, मान लो अगर ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे आपका आर जो है 10 मीटर बोल दिया, ऑल राइट। तो ए क्या हो जाएगा आपका 0.1 मीटर हो जाएगा, ऑल राइट। सो 0.01 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर 100 हो गया। तो ये वाली क्वांटिटी तो बहुत छोटी हो गई ना, ये वाली क्वांटिटी तो बहुत छोटी हो गई। तो इसको आप 3/2 से भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो स्टिल इट विल बी वेरी लेस, ओके। तो 1 के कंपैरिजन में ये वाले जो क्वांटिटी आपका ये मतलब 1 के कंपैरिजन में जो एग्जांपल लेके कहता रहा हूँ 1 के कंपैरिजन में छोटा है, तो यहाँ पे इसको हम क्या नेग्लिजिबल लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, क्योंकि हम कैलकुलेशंस ईजी करना चाहते हैं। उसी तरीके से आगे के सारे टर्म्स तो वैसे भी छोटे ही होंगे, क्योंकि वो ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर में पावर बढ़ता जा रहा है, ऑल राइट। सो 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर पावर 3/2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 1 हो गया। फिर उसके बाद आर क्यूब का मल्टीप्लिकेशन, जब आप इसको अब अगेन आप इस पर लिखोगे आर क्यूब इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर पावर 3/2, तो आर क्यूब इंटू 1 प्लस 0 प्लस डॉट 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 0 0 0। सो बेसिकली ये क्या आ गया, आर क्यूब आ गया, ऑल राइट। यहाँ पे समझ में आ गया। अभी यहाँ पे एक चीज़ याद ध्यान देना है कि जब मैंने स्टार्टिंग बोला था कि R is if R is much larger than the separation distance, then electric field basically cancel out। तो वो चीज़ अलग केस है। यहाँ पे जो R का कंपैरिजन हो रहा है वो A से कंपेयर हो रहा है, ऑलराइट। हम अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं जहाँ पे कुछ तो एग्जिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ओके। लेकिन अगर आप R को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दो, 100-200 मीटर कर दोगे, तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही है, ऑलराइट। सो यहाँ पे एट अ पॉइंट ऑन द डाइपोल एक्सिस हमें क्या मिला था, वेक्टर ई इक्वल्स 2p वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब यहाँ पे 2p वेक्टर, p वेक्टर कहाँ से आ गया, तो बेसिकली अभी क्या है, पहले हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया, जो हमारा ये वेक्टर p है, वेक्टर p इज इक्वल टू q इंटू 2a पी कैप, जहाँ पे पी कैप इलेक्ट्रिक डायपोल के डायरेक्शन को शो कर रहा है, जो ये वाला डायरेक्शन है। एंड यहाँ पे 2a क्या है, सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट चार्ज। ध्यान देना है, सेपरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, बिकॉज ऑफ दीज वर्ड्स एग्जामिनर्स प्ले ट्रिक्स विथ योर माइंड, ओके। तो यहाँ पे ध्यान देना है, सेपरेशन है ये, सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस, और यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द चार्जेस, ऑलराइट। सो यहाँ पे हमने वेक्टर पी को ऐसे डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, यहाँ पे आप ध्यान दो 4QA है ना, तो इसमें से 2 इंटू 2QA लिख सकते हैं, और यहाँ पे पी कैप है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को हमने क्या लिख दिया 2, और यहाँ पे क्या हो गया पी वेक्टर, ओके। तो यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे आपका क्या आ गया, फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस यहाँ पे 2p वेक्टर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर इक्वल्स माइनस पी वेक्टर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये आर क्यूब है, तो यहाँ पे हमने क्या डिराइव किया था, ये वाला एक्सप्रेशन देखो आप, -2QA डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब पी वेक्टर, ऑलराइट। तो इन दोनों ही एक्सप्रेशंस को आप कैलकुलेट करो तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि फॉर अ पॉइंट ऑन द डायपोल एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, ओके। 2 टाइम्स है ये वाला। और यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है फॉर पॉइंट्स ऑन द डायपोल एक्सिस वो इधर डायरेक्शन में है, और इक्वेटोरियल प्लेन पे जो आपका डायरेक्शन बनता है वो इधर साइड होता है, माइनस पी कैप, और ये क्या हो गया पी कैप, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ऑलराइट। Now it is clear that the dipole field at large distances does not involve Q and A separately. It depends on the product QA. ये जो product है Q into A इस पे डिपेंड कर रहा है, right? This suggests the definition of dipole moment. The dipole moment vector P of an electric dipole is defined by vector P equals Q into 2A P unit cap. Alright? आप इसको रिलेट करो, हम यहाँ पे मोमेंट जो वर्ड आ रहा है F क्रॉस इंटू आर, F क्रॉस आर कैप, F क्रॉस आर वेक्टर। तो यहाँ पे ये आप जब किसी फोर्स का आप मोमेंट निकालते थे किसी पॉइंट से, जैसे ये आर वेक्टर है और यहाँ पे एक फोर्स इधर वेक्टर ऐसे लग रहा है, तो इस पॉइंट पे जो मोमेंट निकलता था वो आप कैसे करते थे, इनका वेक्टर प्रोडक्ट लेते थे। तो यहाँ पे क्या फोर्स का मोमेंट हम बोलते थे मोमेंट, ये जो वर्ड मोमेंट यहाँ पे आया, तो डाइपोल मोमेंट भी इस तरीके से है, क्योंकि एक क्वांटिटी को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑलराइट, Q इंटू 2A पी कैप, ऑलराइट। It is a vector whose magnitude is charge q times the separation 2a, separation 2a। See यहाँ पे क्या हो सकता है कि
I have already made a video on this. I have already made a video on this. It was a JEE main question, I guess. Yes, it was a JEE main question, and I had told there that there are two mistakes. There are two mistakes that students can do. All right. तो वहाँ पे आप जाके देखना. You should watch that video. तो आपको समझ में आएगा. अभी यहाँ पे क्या है, वेक्टर P, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो ये हो गया, Q इंटू टू ए पी कैप. ऑल राइट. दूसरा क्या है, आप सेपरेशन है यहाँ पे, आपको कभी उसमें बोल देगा, आपको एक डायरेक्टली दो पोजीशंस दे देंगे, आप दो पोजीशंस ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पोजीशंस दे देंगे, और उसकी वजह से आप एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालोगे. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल जा सकता है Q इंटू एल वेक्टर. ओके, यहाँ पे क्रॉस लगाना सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या करो, Q एल वेक्टर. ऑलराइट. और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q एल कैप. ओके, जहाँ पे एल मैग्नीट्यूड है किस वेक्टर का, एल वेक्टर का, एल इंटू एल कैप. ओके, इसी वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. राइट. तो इस बेसिस पे है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, क्यों इन चीज़ों पे ध्यान देना है. यू शुड वॉच दैट वीडियो. ऑलराइट. तो ये हो गया. नाउ सेकंड इज, यहाँ पे एक और टर्म है पॉइंट डाइपोल. We can think of the limit when the dipole size 2a approaches 0, the charge q approaches infinity in such a way that the product p equals q into 2a is finite. क्या बोल रहा है, जैसे अभी क्या है कि मान लो डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये सेपरेशन है. अभी आप इस सेपरेशन को छोटा करते जाओ आप यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये सेपरेशन बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है. बट अगर आप यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ये एकदम ही जीरो है. ओके, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप जब इसको देखोगे तो ये जीरो, मतलब जीरो को अप्रोच कर रहा है. ओके, ये वाला केस देखो यहाँ पे, तो अभी भी तो डिस्टेंस है, बट कंपैरेटिवली ये डिस्टेंस बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो. तो अगर ये अप्रोक्सीमेटली जीरो है, तो इसको फाइनाइट बनने के लिए क्या होगा, आपको ये क्यू का बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए. राइट. जैसे एग्जांपल ले लो, 2a अगर मान लो 0.00001 है, तो इसमें कोई मैग्नीट्यूड अगर चार्ज का मल्टीप्लिकेशन 10⁴ से कर दिया, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू देगा. तो ऐसे डाइपोल को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डाइपोल. ऐसे डाइपोल को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डाइपोल. ओके. ऑलराइट. नाउ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल्स. सी, व्हाई आर वी रीडिंग दिस. ओके, इसका रीजन क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, कोई ज़रूरत है इसकी. सी, इन योर डेली लाइफ आप जो भी अभी तक जो भी पढ़ोगे, दे ऑल विल बी हैविंग सम एप्लीकेशन इन योर डेली लाइफ. ओके, यहाँ पे अभी आप पढ़ो, जैसे इन मोस्ट मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड ऑफ नेगेटिव चार्जेस लाई एट द सेम प्लेस, देयरफॉर द देयर डाइपोल मोमेंट इज जीरो. CO2 एंड CH4 आर ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर्स होते हैं वो एक्जैक्टली सेम प्लेस पे रहते हैं, तो ऐसे चार्जेस का कोई डाइपोल नहीं रहता. तो इनको क्या बोल रहे हैं, तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है. राइट. और लेकिन ऐसे भी कुछ आपके मॉलिक्यूल्स हैं जिनके जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हैं वो उनके सेंटर एक प्लेस पे नहीं होते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स में एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है. जिनके सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव के एक ही जगह पे होते हैं, तो डाइपोल मोमेंट तो जीरो है उनका, लेकिन अगर उस वाले मॉलिक्यूल में अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चले आएंगे, हाउएवर दे डेवलप अ डाइपोल मोमेंट व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड. एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने पर उनमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाता है, जिनमें सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का एक ही प्लेस पे रहता है. लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंटर और पॉजिटिव और नेगेटिव का एक प्लेस पे नहीं रहता है, तो उनमें ऑलरेडी पहले से ही एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. अब यहाँ पे ओके, हमने समझ लिया इन्फॉर्मेशन आपको, इसकी ज़रूरत क्या है. सी, ऐसे इन्फॉर्मेशन को पढ़ के हम कुछ चीज़ें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में. ओके, तो ये सब पढ़ने का एक ही रीज़न है कि हम अपनी डेली लाइफ में कैसे चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी लाइफ थोड़ी इजी बना सकते हैं. ऑलराइट. तो जैसे अभी आपने बायनॉमियल थ्योरम पढ़ा, आप आगे चल के आप पक्का ये एक स्टेटमेंट सुनोगे कि यार ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये पढ़ ले, कि इसका यूसेज तो मुझे कहीं लाइफ में दिख नहीं रहा. नो, इट इज़ रॉन्ग. डोंट लिसन टू देम. आगे चल के जब भी आप कोई भी फील्ड आप चूज़ करोगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इवन कंप्यूटर साइंस और AI, एवरीवेयर यू विल सी द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स. ऑलराइट. तो ऐसे जो बायनॉमियल थ्योरम टाइप के ये जो भी एक्सप्रेशंस हैं, इनको आप अवॉइड मत करिए. ओके, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वो भी अच्छे से पढ़ना है. ऑलराइट. ये ध्यान में रखते हुए कि इनका आगे जाके कहीं ना कहीं एप्लीकेशन आप यूज़ करोगे. ऑलराइट.
So this is all about this video. I hope you found this video helpful. आपको अच्छा लगा, then you like the video, share it among your friends and subscribe to the channel. All right, in the next video we will talk about electric dipole in a uniform external field. ओके वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस पूरे चैप्टर का, चैप्टर 1 का, फिजिक्स टेक्स्ट बुक 1 से, because I have already made a video on Gauss law and applications of Gauss law. You can also watch that video. All right, so we will meet again. Until then, stay curious, stay safe. Thank you guys.